Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School. This is Mrs. Deepa Mallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 11, Work and Energy from Standard 6th. Can you tell me please what actions are seen in this picture? The boy is rolling the tire, a girl is lifting up the bag and the nail is hammered. The girl is pulling the box. A man is taking off the log and the arrow is being thrown away pressing with the finger on the sponge. So what we have seen in this, okay, we have seen that various kinds of force are applied on it. In various actions in the picture, has the object changed its original position? Every time the object is been changing from its original position. In the above picture, we seen that the position of the sum of the objects has changed. That is what? That is the objects have been displaced. Correct, no? एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई भी जगह पे क्या हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हैव बीन टेकन प्लेस. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स प्लेस बाय अप्लाइंग force on it, it is said that work is done. Now let's try with the another one. Okay, tie a string to an empty box as shown in the picture. Okay, in the first one, pull the box through distance of 10 meters along a straight line. Is it possible? Yes, it's possible because for doing this we require to apply a less force. Now fill the same box with the 20 books. Okay, pull the same box again through the distance of 10 meters in a straight line. What is your experience this time? We can experience that we are applying a more force to pull it. Correct, no? Now pull this loaded box through the straight distance of 20 meters. We feel that it will become more difficult for us. When did you feel that more work was done? We can feel that if the box is been loaded, and if the box is been loaded and we are pulling it from the 10 meters and 20 meters, we felt that it is become more difficult for us. More work is done for the same displacement when more force is applied. Do the work. Okay, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ज़्यादा काम हम लोग बोल सकते हैं कि काम बहुत हुआ है जब हम लोग एक ही चीज़ को एक ही जगह से डिस्प्लेस करने के लिए विद द सेम स्पेस, but when we are applying a more force on it to do the same work, we can say the work is done more. Okay, if the same force is applied for the more displacement, more work is done by the force. Now in the above activity, which are the different forces acting on the box? The box is acting with the gravitational force also. Yes, no? And exclude that this frictional force and the muscular force. Correct, no? Is the displacement possible without the force? Without the force, is the displacement is possible? No, not at all. Yes, no? If a force is applied with both the hands on the wall, will there be a displacement? No, because the object is having a much mass and much strength as compared to the muscular force. Understood? If a no displacement occurs on applying a force, what does it indicate? Think about it. Okay, now let's try this. Take a pulley, fix it at a high, okay, and draw the string over the pulley. वहाँ का string उसको draw कर दीजिए. Tie a load of 2 kilograms at one end, hold the other end of the string and pull it downward and lift it and load. First up to the height of the 1 meter, then up to the height of the 4 meters. When is more work is done? We can see that the more work is done from the distance of 4 meter, because more the distance, more the force to be applied to pull it. Correct, no? So we can say more work is done. When the applied force is same, more work is done when there is a greater displacement. Okay, now in other words, measuring the work, both the force and displacement must be considered. Okay, for measuring the work we require both the things. One is displacement, second one is force. Okay,
The relationship between the work and the energy. The boy in the picture has applied a force to the toy car. You can see over there in the point figure number 11.4. Okay, work has been done because the force applied to the car has caused the displacement. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लड़का फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड की तरफ ताकि वो ट्रक आगे की तरफ मूव हो सके. सो द डिस्प्लेसमेंट इज बीन टेकन प्लेस. करेक्ट. इन अदर वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉयज एनर्जी इनटू द वर्क हैज टेकन प्लेस थ्रू द अप्लाइड फोर्स. ओके. रन अराउंड द ग्राउंड with your friends. Can your friends run as many rounds as you can? Just see about it. Okay, जितना तुम राउंड्स तुम्हारा ग्राउंड का मूव होके आ रहा है उतना तुम्हारे फ्रेंड्स भी राउंड्स ले पाएंगे क्या? डू ऑल द फ्रेंड्स हैव द सेम कैपेसिटी फॉर द रनिंग? नो. Your friends will complete either more or less rounds than the number of rounds you have completed. Okay, there may be a chances are there. Okay, कि तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं तुमसे ज़्यादा राउंड्स मार के आए या फिर तुमसे कम राउंड मार के आए. The number of the rounds will not be same. This we all know. Okay, some will get tired on completing the two rounds and some will get tired after completing the 3 or 4 rounds. कुछ लोग 3-4 राउंड्स मारेंगे या फिर कुछ लोग 2 ही राउंड मार के थक जाते हैं. ओके, दैट इज टू से each one's capacity to complete the rounds is not same. So what we can infer from this, that the each one person's capacity is not same. Yes, no, सभी लोगों का काम करने की क्षमता इक्वल नहीं होता है. You can complete only as many rounds as you have capacity to do for. The capacity to do for work is called energy. So what is energy? कि हम लोगों के पास जितना कैपेसिटी रहता है काम करने का, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी. ओके. नाउ वाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज? बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जब एक्सरसाइज करते हैं वी रिक्वायर अ मोर एनर्जी, सो इट विल बर्न आउट द मोर कैलोरीज. ओके. सो वो फैट्स जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड है वो फैट्स ख़त्म होते हैं. देन आफ्टरवर्ड आवर बॉडी रिक्वायर मोर एनर्जी. दैट इज़ वाई we feel hungry. From where does our body get energy? From the food whatever we are eating. No, from that we were getting the energy. Why do we get tired? Because when we do much work by using the physical or mental, we feel tired. The unit of work and energy are mostly same. Okay, unit of work and energy दोनों का सेम है, दोनों को सेम यूनिट्स में मेजरिंग किया जाता है. वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड इन द यूनिट नेम्ड जूल, दैट इज SI system. Okay, that is system of international units. Now let us understand about the forms of energy. Okay, under which the first one is the mechanical energy. What will happen as a result of the action in the picture? ओके, यहाँ पे तुम लोग ने देखे हो गिल्ली डंडा, सॉरी, व्हाट डू वी कॉल दिस, आई डोंट नो इन द हिंदी. ओके, दिस इज अ कैटपुल्ट. यस, नो, रबर एंड अ कैटपुल्ट. व्हेन वी प्रेस it will be stretched, and when we release it, the object which we put inside it, no, it will be thrown far places. Okay, in the above example we see that when the rubber of the catapult is stretched and released, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. यस ना, वो कैटपल्ट को हम लोग प्रेस करके पीछे की तरफ खींच के छोड़ देंगे, वो अपनी जगह पे ही आ जाती है आफ्टर सम टाइम के बाद में. यस, नो. एंड द स्टोन विच विल वी हैव पुट इनसाइड ऑफ इट, नो, इट विल मूव ऑफ. यस, नो, ये बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है, इट फ्लाइज ऑफ. सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ द बॉय इज wound and then released, the toy starts playing. When the water stored in the height is made to fall on a wheel, the wheel starts rotating. Correct, no? So ये सब में क्या देखने मिलता है? ये सब में हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी देखने मिलता है. Okay? So let us understand. In each of these action, displacement is taking place. ये सारे एक्शंस में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट तो दिखाई दे रहा है, which means that work is done. Okay, whenever there is a displacement, it means work is done. Okay, from where the energy obtained to do this work. Okay,
सो ये एनर्जी को करने के लिए हम लोगों को कहाँ से मिल रहा है एनर्जी, ये वर्क को कंप्लीट करने के लिए? द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जब कोई काम को हम लोग करने के लिए एक चीज़ के अंदर जो एनर्जी स्टोर किया हुआ रहता है, वो एनर्जी को जब हम लोग यूज़ करने जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ potential energy. Now take a two balls, let one of them stand at the center of the table and place the second ball on the table and push it so it to hit the first ball. Okay, ये तुम लोग ने बहुत बार खेले होंगे. What happens when the second ball hit the first one? Observe that the second ball will also moves into the motion. It also displays its place. From where did the second ball get the energy to set the first ball in the motion? Yes ना? So यहाँ कहाँ से मिलता है? Through of the potential energy. Now let us understand about the in the game of the marble, from where does one marble get energy to get another marble in the motion? ओके, जब तुम लोग मार्बल्स का गेम खेलते हो उस टाइम पे जब तुम लोग एक मार्बल को दूसरे मार्बल को मारते हो, सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व दैट द अनदर मार्बल इज सो इन द मोशन. यस ना? तो यहाँ पे इसको मोशन कहाँ से मिल रहा है? वेल प्लेइंग द कैरम, from where does the striker get the energy to make the pieces move? The striker is having a potential energy, then afterward it is converting into the kinetic energy. We give energy to the marble on a striker and set them in the motion, correct na? The energy obtained from the motion is called kinetic energy. Okay, now the energy used for doing the mechanical work is called mechanical energy. ओके, मैकेनिकल वर्क को करने के लिए कोई भी सिंपल चीज़ वाला मशीन बनाने के लिए या फिर कोई सिंपल चीज़ वाला मैकेनिक्स यूज़ करके करने वाले काम को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, ए मैकेनिकल एनर्जी. देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. वन इज पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड ड्यू टू द पोजिशन and the kinetic energy obtained when it is in the motion. Now let us learn about the point number B, that is heat energy. Okay, so what you can observe in the pictures, that pictures we can observe that something is boiled and we are giving a solar energy on some of the object, make it to be burnt. Yes na? The earth receives heat in a proper quantities from the sun. Okay, करेक्ट और नॉट? हम लोगों को एक्चुअली ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, हीट कहाँ से मिल रहा है? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द सन. दैट इज हाउ एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल टू द लिविंग वर्ल्ड इज मेंटेन. ओके, कैन यू इमेजिन दोज डेज जहाँ पे हम लोगों को बिकॉज ऑफ द शेडी क्लाउड्स वी विल नॉट गेट द sunlight. How do we feel? We feel very tired, lazy, correct no? And exclude that we feel ill. So because of this sunlight only, the atmospheric temperature is maintained and the living world will gonna be survive. Heat is form of energy. Heat भी एक तरीके का energy form है. Sunlight contains the heat energy. Okay, heat is produced by burning of the fuel. Heat energy is used in the kitchen all the time. हीट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ कैलोरी. हीट को किस में मेजर करते हैं? हीट को हम लोग कैलोरी में यूज़ करते हैं, करेक्ट नो? सबसे ज़्यादा हम लोग हीट एनर्जी कहाँ यूज़ करते हैं? वी विल यूज़ इट इन द किचन. नाउ टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड होल्ड इट ओवर अ शीट ऑफ द पेपर इन अ सनलाइट. नाउ मूव द लेंस इन सच अ वे दैट देर इज अ टाइनी स्पॉट ऑफ द लाइट ऑन द पेपर. Hold the lens in this position for a while. What will happen? We can observe that the this thing sheet will gonna be burn. Okay, why this is happening? Because of the heat energy. Now light energy. We have learned that the plants make their own food with the help of the sunlight. It means that light is transformed into the energy into the food. Yes no? यहाँ पे हम सबको पता है कि ग्रीन प्लांट से ना अपना फूड खुद बना लेते हैं थ्रू द photosynthesis. But how they are making? With the help of this sunlight. That is why light energy. It means that light is transformed into what? Into the energy in the food.
plants and the animals use this food for doing their work. It means that light is also a kind of energy. Generally, grapes which appear in the market during the December and January are sour. Yes, no? ये जो ग्रेप्स है ना दिसंबर और जनवरी में हम लोग को मिलता है, ये बहुत ही खट्टे रहते हैं. और वही मार्च और अप्रैल में मिलने वाले ग्रेप्स रहते हैं ना, वो बहुत स्वीट रहते हैं. क्यों ऐसा होता है? ओके, बिकॉज ऑफ सनलाइट सम ऑफ द ग्रेप्स विल गोना राइप. करेक्ट नो? इसीलिए वो स्वीट रहते हैं, उसका कट्टापन निकल जाता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द केमिकल चेंजेस. हाउ डज द पिक्चर अपेयर ऑन द स्क्रीन ऑफ द टीवी, मोबाइल, लैपटॉप एंड अ सिनेमा थिएटर? यहाँ पे पिक्चर कैसे दिखते हैं? अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ देख पाएंगे क्या? नो नो. सो हियर ऑल्सो वी रिक्वायर अ लाइट एनर्जी. Now let us learn about the sound energy. You might have been seen the glass panes of the windows crack due to the loud noise. Okay? हम लोग ने बहुत बार देखा है जब बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आता है तो घर के जितने कांच है वो मोस्टली फूट जाने के चांसेस रहता है. सिमिलरली साउंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द टॉय कार. दिस मीन्स दैट some work is done by sound. This tells us sound is a form of energy. इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि साउंड भी एक तरीके का एनर्जी ही है. नाउ केमिकल एनर्जी. व्हेन वुड बर्न्स वी गेट हीट एंड लाइट इन द bonfire also. राइट ना? समटाइम्स वी हियर द क्रैकलिंग साउंड एज वेल. यहाँ पे हम लोग जब कोई चीज़ को वुड को बर्न करते हैं तो क्रैकलिंग साउंड भी आता है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द वुड इज एमिटेड इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू द केमिकल एक्शंस. जो एनर्जी वुड के अंदर स्टोर किया हुआ है वो क्या होती है? वो अलग अलग फॉर्म्स में बाहर निकलती रहती है, ये केमिकल एक्शंस के वजह से. ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लेड एसिड बैटरी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस. ये लेड एसिड बैटरी तो हम लोग को मोस्टली घर में या फिर कार के अंदर यूज़ करते रहते हैं. इसमें भी क्या होता है, इसी के अंदर भी केमिकल एनर्जी ही रिलीज होती है जो हम लोगों को हीट प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है. द एनर्जी ऑब्टेन्ड थ्रू द केमिकल एक्शंस इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. जो केमिकल एक्शंस यूज़ करके हम लोग को एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं. In which form is energy stored in the plant food? It is also a chemical energy. Yes, no? Photosynthesis is a chemical reaction. How is the energy obtained from the cooking gas? Okay, energy कहाँ से मिलती है cooking gas में? जब उसको हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एक स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, तब वो एनर्जी रिलीज होती है. ना मैकेनिकल एनर्जी, हीट energy, light energy, sound energy, chemical energy, electrical energy are the various forms of the energy which we have learned. Now observe and discuss here. What you can see that here there is a link as given of the transform of energy. Actually क्या होता है, जो पानी एवोपरेट होके क्लाउड्स बनती है वो बरसने के बाद में वो वाटर को बड़े बड़े डैम्स के अंदर स्टोर किया जाता है और उसके नीचे जब टरबाइंस रखेंगे वो ऊपर से गिरने वाला पानी पोटेंशियल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके टरबाइंस को रोटेट करती है. और जब वो टरबाइंस रोटेट होते हैं तो एनर्जी फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू हम लोग हमारे घर तक लेकर आते हैं. ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू हम लोग हमारे घर पे लेते हैं. देन आफ्टरवर्ड स्विचेस के थ्रू हम लोग हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्टूड नो? ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द वेरियस अप्लायंसेस वी यूज सच एज द फैन, लैम्प, मिक्सर, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लोथ्स, आयरन. इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू देम to make them to be work? We all know we require the electrical energy for making all this to be work. Now transformation of energy. Transformation of energy takes place when work is done. Let us consider one chain of the transformation of energy. Okay, in the course of the water cycle, water evaporates due to the heat of the sun. Yes, no? And the clouds will gonna form because of that vapor. Now whenever that clouds condense, it will come into the form of the rains again to the earth, which water is been stored again into the reservoirs or on the dams. These
are stored at a very height. Okay, therefore their water has a potential energy. जब हम लोग कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी में रहता है. सेम वे जब आप लोग कोई जगह पे कोई बुक रखेंगे तो वो बुक के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, तो वो उस जगह से हिल नहीं पाता है. दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. नाउ आफ्टर दैट व्हेन वी मेक देम टू बी फ्लो, ओके, जब ये पोटेंशियल एनर्जी से है ना हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी में. कभी जब वो वाटर को है ना वहाँ से छोड़ दिया जाता है नीचे की तरफ. सो नीचे क्या रखते हैं, नीचे वाटरफॉल्स के नीचे टरबाइंस रखते हैं, बड़े बड़े फैंस जैसे. ओके, ये क्या करते हैं, ये यू ऑल नो दैट the liquids flow from higher pressure to the lower pressure. yes no. so same way पानी भी हाई प्रेशर से नीचे की तरफ जब आता रहता है उसका स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीज होता है. इट्स द स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली एंड द स्पीड विल बिकम वेरी हाई which make when it fall on the turbine it will move the turbine. okay, the turbine rotates, produce what, it produces the electrical energy. okay, now you can see from the picture how the electrical gets transformed into the various other forms of the energy. Now electrical energy is used in our houses for the various purposes. हमारे घर में बहुत सारे purposes के लिए, बहुत सारे काम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं. इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लाइट एनर्जी, लाइटनिंग अ बल्ब, इनटू अ काइनेटिक एनर्जी. ओके, ऑन स्टार्टिंग द फैन, sound energy while playing the music system, and also heat energy in an oven. correct no? Thus we see that we are indirectly utilizing nothing but solar energy in all this transformation of the energy. yes ना. जब तुम लोग इसका कोर जानने की कोशिश करेंगे, इसका मूल जानने की कोशिश करेंगे, then we will understand that all these energies are coming from where? coming from the solar energy. yes ना. यहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी के अलावा कुछ यहाँ पे कोई भी चीज़ पॉसिबल है क्या? ये ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी है ना, यहाँ पे सनलाइट के अलावा ये सारे चीज़ें पॉसिबल है क्या? नो. So in other words, the sun is the most important source of all energy, right? No? Now energy resources. What are energy resources? The resources used for getting the energy can be classified into the two types. Actually energy resources क्या है? जहाँ से हम लोगों को कोई चीज़ मिल सकती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. सो अभी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, जिधर से हम लोगों को एनर्जी मिल सकते हैं वो हमारे लिए एनर्जी रिसोर्सेज है. द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. द एनर्जी रिसोर्सेज विच मैन हैज़ बीन यूजिंग फॉर द सेंचुरीज are called conventional energy resources. okay, the conventional energy resources include coal, fossil fuels such as the petrol, diesel, natural gas. ये सब conventional energy resources है. okay, we cannot replenish these resources. wood is also cannot be replenished easily. yes ना. ये conventional energy resources क्या होता है, जो है ना आफ्टर सम टाइम एग्जॉस्ट होने की चांसेस है, ख़त्म हो जाने की चांसेस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल रहने दो, पेट्रोल रहने दो, डीजल रहने दो, नेचुरल गैस रहने दो. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है? दीज रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूज्ड ट्रेडिशनली. इसको हम लोग ट्रेडिशनली यूज़ नहीं करते हैं. दे आर इनएग्जॉस्टिबल एंड कंटिन्यूअस एंड कैन नॉट यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स अगेन एंड अगेन. एग्जाम्पल सोलार एनर्जी. ओके, द सोलार एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन इज कंटिन्यूअस एंड एनॉर्मस. कभी भी सूरज की रोशनी कम हो सकती है क्या? चांसेस हैं. बचपन से लेकर अब तक आप लोग ने देखा है क्या कि कभी सूरज जी ने स्ट्राइक किया है, वो बोला है कि जाओ मैं मेरी एनर्जी नहीं दूंगा तुम लोगों को? Have you ever seen? No. So the resources which will never go be in, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल. in under which first one is solar energy. okay, the energy obtained from the sun
दिस इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ. जितने भी एनर्जी हम लोगों को अर्थ के ऊपर दिख रहा है ना, सो वो सब का मेन कौन है? सोलर एनर्जी है. ओके. A variety of the devices have been developed for making the use of the solar energy. For example, solar cooker है, solar water heater है, solar dryer है, सोलर सेल है. ये सब में हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है. यू कैन सी ओवर देयर इन द फिगर 11.10 सोलर एनर्जी. ओके, दिस इज व्हाट सोलर water heater this one is. At the first three devices mentioned above, heat energy is obtained from the sun to utilize the cooked food, heat the water and dry again. In the solar cell, electrical energy can be obtained from the solar energy. लेकिन सोलर सेल में क्या मिलता है हम लोग को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है सोलर सेल से. The solar electrical plants have been the capacity to produce the electricity on a large scale. ये जो सोलर प्लांट्स रहता है ना, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, ये क्या करते हैं? ये है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बहुत बड़ी तादाद में. अ सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलर सेल्स. और सोलर प्लांट के अंदर क्या रहते हैं? बहुत सारे सोलर सेल्स ही रखे जाता है, बिकॉज वी नीड टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी नो फ्रॉम दैट. नेक्स्ट इट कम्स विंड एनर्जी. Electricity is generated by the means of windmill using the strong winds. A windmill is also used for drawing the water from a well. You can see here, okay, यहाँ पे आप लोगों को फिगर नंबर 11.11 में आप देख सकते हैं बड़े बड़े पंखे जैसे चीज़ें लगाया गया है. इसको क्या बोलते हैं? ये है विंड मिल्स. ओके, सो ये विंड मिल्स है ना, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे रखा जाता है. और जहाँ पे हवा जब ब्रीज होती है, ब्रीज जो बहुत स्ट्रांगली ब्लो होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से ये इसके ऊपर का जो फैंस है वो रोटेट होते हैं. व्हेन दे विल रोटेट द इलेक्ट्रिसिटी विल गोना बी generated. Understood? Next it comes the tidal energy. A wall is constructed at the narrow region of the creek. creek में एक wall के यहाँ पे construct करते हैं due to the waves generated by the high and low tides. जब high tides and low tides आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े waves आते हैं और बहुत फोर्सफुली आते हैं. और ये फोर्सफुल वेव्स जब टरबाइन के ऊपर पड़ते हैं, वो टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट होती हैं. ये टरबाइन को किससे करते हैं? फिट करते हैं वॉल के पास. ओके, और जब ये टरबाइंस रोटेट होते रहते हैं तब वो एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर. द वाटर स्टोर्ड इन द डैम एट अ हाइट इज ब्रॉट डाउन थ्रू द टनल और टरबाइंस. यहाँ पे क्या करते हैं? जहाँ पे वाटर हम लोग ने डैम्स के अंदर स्टोर किया है ना, बहुत ऊपर ऊंची जगह पे, वो है ना टनल या फिर टरबाइंस के थ्रू नीचे लाया जाता है. तो जनरेटर आर रोटेटेड. यहाँ पे जनरेटर क्या होती है? टरबाइंस रोटेट होते तो जनरेटर भी रोटेट होने लगती है. द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट. जहाँ पे इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो जगह को हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट. द कोयना प्रोजेक्ट इन द महाराष्ट्र इज अ वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट. ओके, कोयना डैम के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, उसको हम लोग हाइडल प्रोजेक्ट करके महाराष्ट्र में माना जाता है. हाइडल प्रोजेक्ट है ये हमारे महाराष्ट्र का. देर आर ऑल्सो द अदर स्मॉलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लोकेटेड एट द अदर डैम साइट्स. नेक्स्ट इट इज कम्स टू द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशनिक वेव्स. जब समुंदर के अंदर वेव्स लहरें उठती है ना, उसमें से भी हम लोग एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी को जनरेट करते हैं. हाउ कम? वेल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, द वाटर मूव्स अप एंड डाउन्स रेगुलरली इन द पोजिशन. ये लहरें जो उठती है ना, तो वेव्स आते रहते हैं, करेक्ट ना? दिस इज टू कैन बी यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वहाँ पे भी टर्बाइंस रखेंगे और जब वो टर्बाइंस रोटेट होएंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगा. द नंबर पॉइंट F इज एटॉमिक एनर्जी. ओके,
The serious crisis of the electricity stored The serious crisis of the electricity stored can be easily generated electricity by the means of the atomic energy. Okay, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे है ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं एटॉमिक पावर से, एटॉमिक एनर्जी से. ओके, द हीट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द फिजन ऑफ द एटम्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स. ओके, हैवी एलिमेंट्स जो रहते हैं ना, यूरेनियम, थोरियम. ओके, इसके अंदर है ना हम लोग एटम्स को फिजन में डालते हैं और जितना है हीट रिलीज होती रहती है ना, वो हीट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. देयर इज एनर्जी इन एवरी सब्सटेंस इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस है उन सब में एनर्जी है. इट इज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज इन द लिविंग थिंग्स ऑल्सो. अंडरस्टूड? नाउ think over it. Note the amount of your electricity bill of the last 8 months and think about the consumption of the electricity during the each month. लास्ट 8 महीने का आप लोग आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले लीजिए और चेक कीजिए कि हर एक महीने में कितना एवरेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं. एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी. इन अ वे सेविंग एनर्जी इज as good as generating the energy itself. yes ना, अगर हम लोग एनर्जी को सेव करेंगे या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है, बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग इट. देर आर सेवरल वेज ऑफ सेविंग एनर्जी सच एज पुटिंग ऑफ द लाइट व्हेन नॉट नीडेड, मेकिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ द सनलाइट का यूज़ ज़्यादा करो. सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी. अदरवाइज वी विल हैव टू फेस द सीरियस कैलेमिटी लाइक द ग्लोबल वार्मिंग. अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को सेव नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक और कार्बन गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज. जो एनर्जी रिसोर्सेज जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज नहीं करते हैं, जिसको हम बोलते हैं green energy resources. Greater the use of such resources is need of the hour. हम लोग को आजकल ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने की सख्त ज़रूरत पड़ गया है. क्योंकि हम लोगों का नेचुरल कैलामिटीज़ और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए. आई होप दैट स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.